Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Depreciation and Amortization. Last class हमने straight line method to charge depreciation discuss किया था. इसका पूरा concept को हमने समझा था. And there we discussed how to calculate depreciation under straight line method, which was using the formula depreciation under SLM is equal to original cost minus scrap value divided by number of years in the useful life. Then depreciation rate percentage. Depreciation rate under SLM is calculated on original cost. So depreciation rate under SLM is equal to amount of depreciation amount per annum divided by original cost into 100. Okay. And then last May we discussed why the method is so called as a straight line method with the help of a graph. Okay. Okay. And so एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग को करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है कि देयर आर वेरियस मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन. हर एक एसेट के लिए the method to charge depreciation may be different. So the choice of charging depreciation method as in कि कौन सा asset के लिए आप कौन सा method यूज करते हो depreciation charge करने के लिए, the choice should depend upon the pattern in which the asset is used. Because depreciation होता क्यों है? वेयर एंड टेयर के कारण. जब हम एसेट को बिजनेस में रेगुलरली यूज करते हैं, सो रेगुलर यूज कॉजेस वेयर एंड टेयर. वेयर एंड टेयर मतलब एसेट का कंडीशन डिटेरियोरेट्स, which causes decrease in the value of an asset, and this decrease in the value of the asset is called depreciation. So depreciation का main reason is the asset being used in the business. So the method to charge depreciation, the choice of method to charge depreciation depends upon the pattern in which the use pattern of the asset. यानी क्या कहना चाहता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10? The method of charging depreciation should reflect the pattern in which the asset is used in the business. So ये जो straight line method है जिसमें हर साल depreciation का amount same calculate होता है, तो ये जो straight line method है, it is recommended for those assets जिनका यूज हर साल सेम है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का यूज हर साल सेम है, तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन देता है. ठीक है, क्लियर है? तो these were the points, few of the points we discussed in the last class. तो अभी before we go to discuss the next method to charge depreciation, let us quickly solve one illustration on straight line method. ठीक है, right? So illustration 1. जैन ब्रदर्स acquired a machine. हम लोग को करना क्या, पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं. शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट for the year 2021 and 2022.
यानी 2 साल के लिए मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट इज एन असेट अकाउंट, तो इसके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी द रूल्स फॉर एन असेट। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। Depreciation is an expense, a non-cash expense. So depreciation के लिए we shall follow the rules of debit and credit for an expense. Expense के लिए rule is increase debit, decrease credit. Okay. So Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of rupees 14 lakhs and spent rupees 1 lakh on its installation. So what is the original cost? 15 lakhs. Purchase cost is 14 lakhs. Installation charges are 1 lakh. So the total original cost is 15 lakhs. तो 15 lakhs लगा है इस एसेट को पुट टू यूज कंडीशन में लाने के लिए। तो 1 जुलाई 2021 को इस मशीन को अपने बुक्स में एंटर करेंगे बाय पासिंग द जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन इज एन एसेट, इंक्रीज डेबिट। पेमेंट हो रहा है तो बैंक एसेट, डिक्रीज क्रेडिट। So machinery account debit to bank on 1st July 2021. So on the debit side of the machinery account, 1st July 2021, to bank 15 lakhs. Brackets में you can write नीचे में 14 lakhs plus 1 lakh, or if you want to waste your time in the exam, you can write to bank 14 lakh, then to bank 1 lakh, giving the dates 1st July 2021. Otherwise, if you want to do smart work, save time means save money for future CAs and CMAs. So just write to bank 15 lakh brackets में 14 lakh plus 1 lakh. So 1st July 2021 को ये मशीन परचेज हुआ है. The firm writes off depreciation. Writes off means charges depreciation. एक्सपेंसेस के साथ, ध्यान से सुना, एक्सपेंसेस के साथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साथ वी ऑलवेज यूज द वर्ड चार्ज्ड और राइट ऑफ. जैसे फॉर एग्जांपल वी राइट ऑफ बैड डेट, तो ऐसा समझ लो अगर अपने किसी के साथ राइट ऑफ या चार्ज ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हैं, यानी वो एक्सपेंस या लॉस की तरह ट्रीट हो. एक्सपेंस और लॉस का एक ही रूल है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट. सो इफ आई से चार्ज ए, तो ए इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और लॉस. राइट ऑफ ए, तो ए इज आइदर एक्सपेंस और लॉस. एक्सपेंस लॉस के लिए एक ही रूल है. क्लियर? तो एक्सपेंस और लॉसेस के साथ वी यूज चार्ज और राइट ऑफ. इसको दिमाग में एक बार के लिए फिक्स करो. ठीक है? डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर. तो हर देखो, ओरिजिनल कॉस्ट इज फिक्स्ड बिकॉज दिस अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड. And if the depreciation is calculated at the rate of 10% per annum on original cost every year, which means the amount of depreciation will be the same every year because original cost is fixed. It has already been incurred 15 lakh rupees. तो अगर अपने depreciation calculate करें 10% per annum on original cost every year, which means the amount of depreciation will be same every year. So here the method is the straight line method. Original cost 15 lakh, 15 lakh ka 10% is 1,50,000 is the amount of depreciation which will be charged every year. The books are closed on 31st December every year. ठीक है? तो ईयर एंड में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. तो ईयर एंड होगा सबसे पहले
31 December 2021. So year 2021 में this machine was used for how many months? It was purchased on 1st July 2021. Year is ending on 31st December 2021. So this was used for 6 months. So 2021 के लिए अपने 6 months का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. कैलकुलेट करके दो. 15 lakhs into 10%. 15 lakhs original cost into 10% into 6 by 12 is 75,000. Basically 1,50,000 का half, 75,000. So 75,000 is the amount of depreciation. Entry is depreciation account debit to machinery account. Depreciation expense increase debit. And depreciation के कारण depreciation होता क्यों है? एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसमें वेयर एंड टेयर होने के कारण. तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो दैट इज वाई मशीन अकाउंट क्रेडिट. एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन 75,000 एंड इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टिंग विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट 75,000. क्लियर है? सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीन 75,000. अब ईयर एंड आ चुका है. ईयर एंड में हम लोग बुक्स को क्लोज करते हैं. तो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करना है. मशीनरी अकाउंट इज एन एसेट. एसेट अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस को निकालकर. सो मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इज कमिंग टू 14,25,000. अब पता है ये 14,25,000 को क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू. 14,25,000 को क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू. तो क्या समझ में आया? द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर charging depreciation is called written down value. Why it is called written down value? Because depreciation charge करने के कारण asset का value comes down. सोचो ना, you are writing off depreciation, so bringing down the value of machine. So after writing off depreciation means charging depreciation, the value of the machine comes down. So that value is called written down value. So value of the machine after depreciation is written off is called written down value. Because writing off depreciation means what? Bringing down the value of machine. So value is called written down value. Written down value means WDV. So this is WDV. Clear? WDV is also called the book value. ठीक है? Written down value. Next, depreciation account को भी close करना है, but depreciation account is a nominal account. And हर एक nominal account का ultimate destiny is they are closed, not balanced. Nominal account means expenses and incomes account. So nominal account is closed, not balanced. Machine account was an asset account, तो इसको हमने बैलेंस किया था, क्लोज नहीं किया था. पर डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस से बोलकर तो उसको हम क्लोज करेंगे. एंड हर एक नॉमिनल अकाउंट यानी हर एक एक्सपेंसेस एंड इनकम के लेजर अकाउंट को हम कैसे क्लोज करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हर एक नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या समझा आपने? हमने ये समझा कि नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम बैलेंस नहीं करते. क्या करते हैं?
क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं? उसका जो भी बैलेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। यानी ये अंत में जाकर कहाँ एंड हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? सो डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में 75,000 है, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सोचो जरा, डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन হয়েছে। क्लियर? सो अंडरस्टैंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये क्या है? इट इज द क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन इज द क्लोजिंग एंट्री। ये नए नए टर्म्स को सीखो, बिकॉज ये सारे टर्म्स हमें कौन से चैप्टर में काम आएंगे? फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में काम आएंगे। So profit and loss account debit to depreciation is closing entry for to close depreciation account. Here है। अब नेक्स्ट ईयर 2022 में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। ऑन 1 Jan 2022 टू बैलेंस बी बाई डी 14 lakhs, 14,25,000, 14,25,000 टू बैलेंस बी बाई डी 14,25,000। अब 2022 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। Depreciation is 10% per annum on original cost every year. Original cost is fixed 15 lakhs. 15 lakhs का 10% is 1,50,000. So every year 1,50,000 depreciation is charged. Written off, charged, written off is same. And 2022 में तो ये मशीन फुल 12 months के लिए यूज हुआ, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,50,000। एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,50,000। ओके, क्लियर है? सो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, देन कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट 1,50,000। ईयर के एंड में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अनलेस मशीन इज सोल्ड इन द ड्यूरिंग द ईयर इन बिटवीन। देन ईयर के एंड में हम लोग मशीन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस आ रहा है 12,75,000 by balance C by D 12,75,000. This is what? WDV at the end of the second year, 2022. 12,75,000 is WDV at the end of the year 2022. So debit side में 14,25,000, credit side में 1,50,000, closing balance is 12,75,000. जैसे नॉर्मल एक लेजर अकाउंट को अपने बैलेंस करते हैं वैसे। क्लियर है? Now depreciation, nominal account, it will be closed, not balanced. Closed how? By transfer to profit and loss account. So credit side में by profit and loss account. Clear है? Yes, Bunny. Okay. Done? Clear है? Now. Wait. हम्म, ठीक है। क्या करना है ब्राइटनेस को? वो तो वो प्रोजेक्टर करना पड़ेगा, रुको। अभी के लिए मैनेज करो, ठीक है? राइट, ओके। तो दिस वाज स्ट्रेट लाइन मेथड।
नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, विच इज द WDV मेथड. एज द नेम, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसमें हर साल द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द WDV, रिटन डाउन वैल्यू. व्हाट इज रिटन डाउन वैल्यू? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आया है, नेक्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज इन दिस इलस्ट्रेशन, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड का इलस्ट्रेशन है, तो वी आर यूजिंग दिस इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड WDV मेथड. WDV मेथड के केस में क्या होता, 2022 में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते वो 14,25,000 पर चार्ज करते हैं. यानी 2022 का डेप्रिसिएशन होता 10% ऑफ 14,25,000, which is coming to 1,42,500. So WDV मेथड में अपने लोग क्या करते हैं, WDV मेथड में we charge depreciation on correct written down value, which is after charging depreciation. So 2021 प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद WDV आया 14,25,000. तो नेक्स्ट ईयर 2022 में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 14,25,000 पर चार्ज होगा. सो नेक्स्ट ईयर 2022 का डेप्रिसिएशन विल बी 10% ऑफ 14,25,000, which is coming to 1,42,500. Can I say that in the first year, of use of the asset, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दोनों ही मेथड्स के केस में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ यूज ऑफ द एसेट. डेप्रिसिएशन चाहे अपने SLM या WDV, दोनों ही केस में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. फर्क कहां आता है, सब्सिक्वेंट ईयर में, आफ्टर द फर्स्ट ईयर. सब्सिक्वेंट ईयर में SLM में depreciation is calculated on original cost every year, and written down value में depreciation is calculated on the WDV जो बैलेंस में है. WDV में देखोगे एक चीज, हर साल अगर अपने डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट करें, WDV मेथड में क्या करना है, हर साल डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट होगा. और रिटन डाउन वैल्यू हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, because we are charging depreciation every year, and because we are charging depreciation every year, the WDV is coming down every year. तो हर साल depreciation का amount also comes down, है ना? क्लियर है? So this method is recommended for that asset जिसका हर साल यूज subsequent years में यूज falls. How? होता है ना certain machines जिनका efficiency subsequent years में कम हो जाता है. जैसे बाइक्स के केस में बताओ, बाइक जब एकदम ब्रांड न्यू था एंड आज की डेट में से 5 साल हो गया बाइक को यूज करते हुए, कंपेयर द एफिशिएंसी, इट हैज कम डाउन, तो यूज विल आल्सो कम डाउन. हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट ईयर यूज करते थे, सब्सिक्वेंट ईयर्स में यूज ग्रेजुअली कम्स डाउन. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड ऐसा होना चाहिए जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में
डेप्रिसिएशन को ग्रेजुअली कम करके दे, कम कम करते जाए वो। तो ये चीज पॉसिबल है इन केस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन डब्ल्यूडीवी, एंड एवरी ईयर, every passing year, WDV decreases because we are charging depreciation. One more thing, if we are charging depreciation on WDV and WDV is reducing every year, can I call this method as reducing balance method? Reducing balance method because the WDV, which is the balance of any asset, is reducing every year, and on that amount we are calculating depreciation. So this method is also called reducing balance method. रिड्यूसिंग का सिनोनिम इज डिमिनिशिंग, कम होता है जो। सो डब्ल्यूडीवी मेथड का दो और नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है? सो द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड is called its WDV. In this method, depreciation is charged on WDV of the asset. It is also called reducing balance or diminishing balance method because the value on which depreciation is charged, that is WDV, reduces every year. This method is used to charge depreciation where the use of the asset, ये method अपने कौन सा asset के केस में use करेंगे? This method is used to charge depreciation where the use of the asset falls in the subsequent years due to decrease in efficiency. For example, machines. ठीक है? क्लियर है? सो WDV मेथड का जो ग्राफ है वो कैसा होगा? क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन डाउनवर्ड स्लोपिंग, करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ गिविंग यू वन क्वेश्चन, थिंक आफ्टर द क्लास इज ओवर, डू नॉट कंटिन्यू टू थिंक ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, in case of WDV method, in case of WDV method, after charging depreciation for many years, can the WDV come to nil? Nil means zero. Zero means not 0.11. Zero means zero. Think and come up in the next class. Have you understood my question? WDV method के केस में after charging depreciation for many years, can the WDV, that is the book value of an asset, come to nil? एकदम जीरो। सोचना एक बार। हाँ, एकदम जीरो। जीरो मीन जीरो। चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है, ओके। So can I answer? नॉट नाउ, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी, उसमें से बाहर निकल जाओ उस क्वेश्चन में से। अभी एक एग्जाम्पल करो, उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे एसेट को आपने परचेज किया था, ओरिजिनल कॉस्ट इज 100, व्हेन ईयर वन, दिस इज ईयर वन ऑफ द एसेट, एकदम स्टार्टिंग, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ ओरिजिन टाइम टी इज इक्वल टू, ईयर वन में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन का रेट इज 10%।
Depreciation rate is 10%. And method is, you're in which method? You're in WDV method. ठीक है, SLM हो चुके हैं, डन. अभी कौन सा मेथड है? WDV मेथड. बट यस, फर्स्ट ईयर में चाहे SLM हो या WDV मेथड हो, depreciation rate is calculated on original cost. So that is why you got confused on these minute things, है ना? So depreciation rate is 10%, 10 rupees year one. WDV कितना आया? 90. Year two depreciation बोलो, 10% of rupees 99. सर 100 रुपए का कोई एसेट हो सकता है? यस, ये 100 करोड़ का एसेट. करोड़ साइलेंट है. Clear? 81 is WDV at the end of second year. Year 3, depreciation will be 8.1. So WDV will be 72.9. Now do not question point में अमाउंट लिख सकते हैं. मैंने क्या बोले? करोड़ में है. ठीक है. So 72.9. 72.9 is WDV at the end of third year. ठीक है. राइट. अभी एग्जाम्पल को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. मतलब वी आर नाउ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. Now let us make a few observations. Let us make a few observations. फर्स्ट ईयर का तो क्लियर है. सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया वो 90 पर किया. क्लियर है. देन थर्ड ईयर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 81 पर किया. ठीक है. अब ध्यान से सुनना. सुन रहे? ओके. सो ईयर वन में ओरिजिनल कॉस्ट 100, 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो 90% बचेगा ना. 90%. ऑब्वियस सा बात है, अगर आप 10% हटा रहे तो बचेगा 90%. देन ईयर टू में आपने 10% 90 पर कैलकुलेट किया तो बचेगा 90 का 90%. तो बचेगा 90 का 90%. देन थर्ड ईयर में आपने 10% कैलकुलेट किया तो बचेगा 81 का 90%. 10% हटाने के बाद बचता है 90%. तो 72.9 इज व्हाट? 90% ऑफ 81. 72.9 is what? 90% of 81. बिकॉज 81 का 10% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बचा 90%. और वो बचा हुआ अमाउंट क्या है? 72.9. तो दिस 72.9 इज 90% ऑफ 81. सिंपल मैथ्स है. मैथ्स भी नहीं है ये. 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या बचेगा? 90%. 81 का 10% माइनस करो. माइनस करके कितना आ रहा है? 72.9. दिस इज 90% ऑफ 81. कैलकुलेटर में चेक कर लो एक बार. यू हैव द कैलकुलेटर? यू हैव अंडरस्टूड? 100 स्टूडेंट्स पर देर. आपने 10% स्टूडेंट्स को निकाल दिया. रूम में कितने स्टूडेंट्स बचे? 90 स्टूडेंट्स लेफ्ट. डू नॉट सी द एग्जाम्पल. लुक एट मी. 90 स्टूडेंट्स बचे.
अब 90 स्टूडेंट्स जो बचे उनमें से फिर से अपने 10% निकाल दे तो कितने बचे? 81 स्टूडेंट्स में से फिर से अपने 10% निकाल दिए। करेक्ट, तो 72.9 स्टूडेंट्स बचे, तो वो 90% ऑफ 81 है ना। कैलकुलेटर में करो 81 इंटू 10%। ये सब थोड़ा क्विकली कैच करो, बिकॉज इसी में अगर अपने टाइम लगाएंगे तो फिर मेन चीज अपना छूट जाएगा। 81 इंटू 10%, 81 पॉइंट, माइनस प्रेस करो, माइनस इक्वल टू 72.9 डिवाइडेड बाई 81, परसेंट का साइन प्रेस करो। हमने परसेंट का साइन नहीं प्रेस किया। 72.9 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100 करो। 72.9 डिवाइडेड बाई 81% का साइन। क्लियर है अभी? आगे बढ़ रहे अभी, हाँ, ठीक है। तो 72.9 is WDB at the end of the third year, which is equal to 90% of 81. Of means into. What is 81? 81 is 90% of 90. Of means into. What is 90? 90% of 100. Of means into. So 90% into 90% into 90% of 100. समझ में आया? क्लियर? 72.9 is equal to 90% of 81. 81 is 90% of 90. 90 is 90% of 100. 81 के प्लेस में हमने ये कर दिया 90% ऑफ 90। 90 के प्लेस हमने कर दिया 90% ऑफ 100। तो बचा क्या? सी दिस। इससे ज्यादा इलेबोरेट वे में कोई नहीं पढ़ा सकता। आया ना ये? तो 90% मीन 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इंटू 100, 72.9. So can I say that 100 into 0.9 to the power 3? नीचे में क्या लिखा है वो मत देखना। 72.9 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.9 टू द पावर 3। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने? 72.9 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.9 टू द पावर 3। 72.9 is what? WDV at the end of third year. 100 is what? Original cost. 0.9 में हम लोग आ रहे हैं, 0.9 में आ रहे हैं। टू द पावर 3, 3 is what? Number of years. Number of years means अगर WDV at the end of third year है तो number of years is 3। अगर WDV at the end of fourth year है तो number of years is 4। अब 0.9 क्या है? 0.9 is 1 minus 0.1। 1 minus 0.1 is 0.9। Now what is 0.9? 0.9 is 1 minus 0.1. So what is 0.1? 0.1 is 10% in decimal.
एंड व्हाट इज 10%? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. व्हाट इज 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? क्लियर. तो क्या कंक्लूजन निकला? WDV at the end of third year is equal to original cost into 1 minus rate of depreciation in decimal. Rate of depreciation is 10%. 10% in decimal is 0.9, 0.1. तो 1 minus 0.1 to the power number of years. Number of years माने WDV जितने साल के बाद का पूछा है वो number of years. So WDV at the end of third year means number of years is 4. WDV at the end of 67 years means number of years is 67 to the power 67. ठीक है. एक बार फिर से ब्रीफ कर रहे हैं फिर कैलकुलेटर में करेंगे, देखना पिच परफेक्ट क्लियर हो जाएगा. अब यहां से अटेंशन पे करना है. जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसको नहीं सोचना है, मेरे साथ रिवीजन करना है. सो असेट का ओरिजिनल कॉस्ट, लेट मी चेंज द पेन. असेट का ओरिजिनल कॉस्ट 100. फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10%. 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो उसका 90% होगा, विच इज 90. सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 10% ऑन 90, 9. 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका 90% बचेगा, विच इज 81. 81 का 10% इज 8.1. 10% का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका 90% बचेगा. तो ये जो 72.9 है दैट इज 90% ऑफ 81. तो 72.9 इज इक्वल टू 90% ऑफ 81. 81 is 90% of 90. 90 is 90% of 100. तो 81 के जगह you can write 90% of 90. 90 के जगह you can write 90% of 100. Of means into. So it is 90% into 90% into 90% into 100. 90% is 0.9 into 0.9 into 0.9 into 100. कैलकुलेटर उठाओ. 100 मेरे साथ 100 प्रेस टाइप करो. ठीक है, मेरे आगे कुछ मत करना. 100 इंटू 0.9 আবার ইন্টু 0.9 আবার ইন্টু 0.9 করে কত এসছে ইকুয়াল টু প্রেস করে 72.9. we have done this in the calculator. 100 into 0.9 into 0.9 into 0.9 and we got 72.9. clear. wait, you are correct. Whatever you say is correct by default. ठीक है. तो 100 into 0.9 into 0.9 into 0.9 is coming to 72.9. तो इसको कैसे करेंगे? 72.9 is equal to 100 into 0.9 to the power 3. अब इससे हम क्या डिराइव कर रहे हैं? 72.9 is equal to 100 into 0.9 to the power 3. What is 72.9? It is WDV at the end of third year. 100 is original cost. 0.9 can be written as 1 minus 0.1. 0.1 in percentage is 10%. What is 10%? Rate of depreciation. So basically it is 1 minus rate of depreciation in decimal. So original cost into 1 minus rate of depreciation in decimal. Rate should be in decimal. Okay. To the power number of years. यानी जितने साल के बाद का WDV पूछा है that many number of years to the power. Clear? तो क्या कंक्लूजन निकला? WDV at the end of
n years, WDV at the end of n years is equal to original cost into 1 minus, look at me and say, even if you're wrong, do not worry, I am there. So WDV at the end of n years is equal to original cost into 1 minus rate of depreciation in decimal. So if the rate is 15%, decimal of 15% is 0.15. So 1 minus 0.15 is 0.85. Correct? So 1 minus rate of depreciation in decimal to the power number of years. ओके सर, ये आपने क्यों सीखा है? बिकॉज ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मैंने इधर में दिया भी है। WDV of an asset at the end of n number of years when depreciation is charged at the rate of R% every year on WDV basis. Means this formula you can never apply for SLM. Okay, it is only on WDV basis. So WDV of an asset at the end of n number of years when depreciation is charged at the rate of R% every year on WDV basis, then WDV at the end of nth year is equal to original cost into 1 minus R to the power n. Okay, take R in decimals. अब ये एक्सरसाइज अपने लोग कर सकते हैं। ध्यान सुनो, वेट। एग्जाम्पल, ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 lakh, depreciation rate is 10% per annum on WDV basis, यूजफुल लाइफ 7 years। बोलो ये फॉर्मूला के एप्लीकेशन में यूजफुल लाइफ यूज हुआ है? आंसर इज नो। ये फॉर्मूला में रेसिडुअल वैल्यू यूज हुआ है? आंसर इज नो, because formula is WDV into WDV is equal to original cost into 1 minus R to the power n. तो इस फॉर्मूला में यूजफुल लाइफ नॉट यूज्ड, रेसिडुअल वैल्यू नॉट यूज्ड। क्यों मत पूछना, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल के साथ डेरिवेशन दे दिया है। ठीक है, कैलकुलेट WDV एट द एंड ऑफ 4th ईयर, यानी n इज इक्वल टू 4। सो फॉर्मूला में फिट करो WDV at the end of 4th year. 4th year is n is equal to original cost 1 lakh, हो गया 0। Original cost is 1 lakh into 1 minus R. R is the rate of depreciation in decimal. Depreciation rate is 10%, 0.1 to the power n. N is number of years, 4. So 1 lakh into 1 minus 0.1 is 0.9, 0.9 to the power 4। समझ में आया? तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो 1 लाख इंटू 0.9 into 0.9 into 0.9 into 0.9. How much is it coming to? 65,610. I will not discuss that. Not required. Have you understood this? रेसिडुअल वैल्यू इन यूजफुल लाइफ का इस फॉर्मूला में कोई यूज नहीं, पर्टिकुलरली इन दिस फॉर्मूला देयर इज नो यूज, बिकॉज जो अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, करने के बाद WDV आया, फिर नेक्स्ट ईयर उसी WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। चार्ज किया, WDV आए, फिर उसके नेक्स्ट ईयर उस WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
तो इस पूरे सीक्वेंस में रेसिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ पिक्चर में नहीं आया, तो ये फॉर्मूला में नहीं है। तो फॉर्मूला इज WDV एट द एंड ऑफ nth ईयर is equal to original cost into 1 minus R. R is rate of depreciation in decimal to the power n. Clear है? Okay. What you were saying, you say that. I'll just comment correct or incorrect. Start. Tell me. Say, speak. You were saying something, na? But इससे पहले जब बोला था, you forgot. Correct. Tell that. Think. जब ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को अपने पास रखो, टीचर से मत पूछो क्या करना है आपको। कंफ्यूजन है आपको, घर जाकर टेक अमाउंट, अमाउंट खुद से लो, नॉर्मल वे में उसको सॉल्व करो, एंड देन जो फॉर्मूला आप सोच रहे हो उसको अप्लाई करो। अप्लाई करके देखो सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस विल मेक यू ग्रो, बिकॉज सेम थिंग माई टीचर डिड इन क्लास 11 एंड आई एम देयर टीचिंग यू। क्या समझा? खुद का ग्रोथ कैसे होगा? कंफ्यूजन है, अपने पास रखो। जो आपको कंफ्यूजन है उसके लिए बता रहा हूं, घर जाओ, वो कंफ्यूजन के लिए कुछ अमाउंट एंड फिगर्स को लो, नॉर्मल वे में उसको सॉल्व करो, एंड जो आप फॉर्मूला बोल रहे हैं, देखो वो फॉर्मूला इज गिविंग द सेम रिजल्ट जो हमको नॉर्मल वे में सॉल्व करके मिला। इफ इट इज गिविंग द सेम रिजल्ट, देन योर कंसेप्ट इज करेक्ट, अदरवाइज यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मिस्टेक पता चला, फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव नहीं मिला, देन कम टू मी। समझ में आया ना? अदरवाइज हैबिट हो जाएगा स्पून फीडिंग का। ठीक है ना? ये आपको मिल मेक यू ग्रो, राइट? क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 में है, सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 में है, बट वी नीड टू शो द मशीनरी अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखो फर्स्ट ईयर जो मशीनरी अकाउंट है, इट इज सेम एज वी डिड इन केस ऑफ इलस्ट्रेशन 1, बट सेकेंड ईयर में depreciation is calculated on 14,25,000, right? ओके, अभी उसके बारे में मत सोचो प्लीज, फॉलो मी, यू विल पास। रेडी? ठीक है, देखते कितने जन इस सिचुएशन को क्रैक कर पाते। ठीक है, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट ₹1,00,000 है। क्रैप वैल्यू है ₹10,000।
and useful life is 5 years. ये डेटा दिया हुआ है. नाउ टेल मी, ये डेटा से पढ़कर मेरे को बताओ, इस एसेट का डेप्री डेप्रिशिएबल अमाउंट depreciable amount is 90,000. 90,000. Depreciable amount is calculated as original cost minus scrap value. Depreciable amount का मतलब क्या होता है? The amount which is to be depreciated means basically asset को एसेट को जब परचेज किया था 1 लाख में परचेज किया था, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है. एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एसेट का यूजफुल लाइफ 5 years का, एंड एट द एंड ऑफ 5th year स्क्रैप वैल्यू इज 10,000. यानी 10,000 पॉकेट में आएगा एसेट को डिस्कार्ड करके. तो यानी इस एसेट के लिए पॉकेट पिंच कितना का हुआ? 90,000. बिकॉज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 जब अपने एसेट को परचेज किया था, तो यू स्पेंडेड 1 लाख आउट ऑफ योर पॉकेट. 5 साल यूज करेंगे एसेट को, 5 साल के एंड में जब डिस्कार्ड करेंगे वी गेट बैक 10,000. So what is the pocket pinch? 90,000, which means we have used worth rupees 90,000 of that asset. मतलब आपने इन 5 सालों में एसेट का कंजम्पशन वर्थ रुपीज 90,000 का किया है. तो ये इसी 90,000 को हमें 5 साल में डेप्रिशिएट करना है. So depreciable amount is rupees 90,000, which is calculated as original cost minus scrap value. ठीक है. अरे ठीक है. सो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 90,000. अब सिचुएशन को समझो. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन. तो यही डेटा है, इसके बियॉन्ड एक भी डेटा मेरे से मत मांग. डेटा क्या मिला आपको? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000. ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू से हमने निकाला डेप्रिशिएबल अमाउंट. ये डेटा में दिया हुआ नहीं, हमने निकाला. डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू 90,000. यानी इन 5 सालों में असेट को 90,000 वर्थ जितना यूज किया है. एंड यूजफुल लाइफ इज 5 years. ठीक है. यू आर अ क्वालिफाइड CMA or a qualified chartered accountant. Your client comes to you with this situation and ask you to tell the method at which should be used to calculate depreciation. आपसे depreciation का मेथड मांग रहा है कि कैसे इस एसेट को डेप्रिशिएट करें. तो डेप्रिसिएशन का मेथड एडवाइस करने से पहले आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? ओके. और वो तो 5 साल बोल दिया वो. You will ask about the use pattern of the asset. Use pattern. Because the method to charge depreciation should reflect the pattern in which the asset is used. So use pattern को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. तो उसने क्या कहा आपसे? क्लाइंट ने कहा कि
इसका यूज हर साल कम हो जाएगा ग्रेजुअली, बिकॉज एफिशिएंसी हर साल कम होगा तो इसका यूज भी कम हो जाएगा। तो जैसे क्लाइंट ने ये बोला तो आपके दिमाग में कौन सा मेथड क्लिक किया? WDV मेथड क्लिक किया। देन यू सजेस्ट क्विकली सजेस्ट WDV मेथड, चलो WDV मेथड यूज कर। बट क्लाइंट ने आपका सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दी। क्लाइंट ने बोला कि WDV मेथड यूज करने के लिए यू रिक्वायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट इज रिक्वायर्ड, say 10%, 12%, 15%. A rate of depreciation is required to apply WDV method. तो क्लाइंट ने आपको बोला कि मैं आपको रेट, हमको कोई रेट नहीं यूज करना। हाँ, क्लाइंट ने आपको सिचुएशन कॉम्प्लिकेट करके दे दी। क्लाइंट ने आपका सिचुएशन कॉम्प्लिकेट कर दिया ये बोलकर कि क्लाइंट को कोई पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज नहीं करना है। तो आपने अपने दिमाग में क्या क्या फ्रेमिंग किया? अपने दिमाग में ये फ्रेमिंग किया कि डेटा को आपने रिकॉल किया। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, तो हमने खुद से निकाला डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000 है। यानी एसेट 90,000 जितने वर्थ का यूज हुआ है होगा होगा इन 5 सालों में। यूजफुल लाइफ 5 साल है। और क्लाइंट का ये कहना है ये जो एसेट है हर साल इसका एफिशिएंसी ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा, तो हर साल इसका यूज भी ग्रेजुअली फॉल होते जाएगा। तो हमने क्लाइंट को ये बोला कि WDV मेथड यूज कर लो। बट क्लाइंट बोलता है कि WDV मेथड यूज करने के लिए एक रेट चाहिए, और क्लाइंट कोई रेट यूज करके डेप्रिशिएट नहीं करना चाहता है। क्लाइंट रेट यूज करने से मना कर दिया है कि रेट नहीं चाहिए मेरे को। बट हमने क्या समझा कि ये एसेट का यूज पैटर्न ऐसा है कि इसका यूज हर साल कम होते जाएगा। तो हर साल इस पर डेप्रिसिएशन भी कम होना है, कम होते जाना है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि हर साल एसेट का एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है यूज होते होने के कारण ग्रेजुअली, तो हर साल इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी ग्रेजुअली कम होगा। तो फीलिंग है रिटर्न डाउन वैल्यू, बट परफेक्टली रिटर्न डाउन वैल्यू यूज नहीं कर सकते, बिकॉज रेट यूज करने के लिए मना कर दिया क्लाइंट। बट जो भी है, इवन इफ वी आर नॉट यूजिंग द रेट, स्टिल मेथड ऐसा होना चाहिए जो कि एसेट को यूज करने का पैटर्न को रिफ्लेक्ट करे। यानी मेथड ऐसा होना चाहिए कि हर साल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली कम होते जाए। तो मेथड ऐसा होना चाहिए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसा होना चाहिए जो कि हर साल डेप्रिसिएशन को कम कर दे, ग्रेजुअली कम कर दे। तो बताओ कैसे आप क्लाइंट का प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? मतलब आपको हर साल डेप्रिसिएशन कम करना है जैसा WDV में होता है। बट हाँ, वो तो पता है। तो मेरे को क्लाइंट को ये 5 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझे क्लाइंट को ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 साल का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देना है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देना है इन रुपीस। सोचो कैसे कर सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो वैल्यू आ रहा है 90,000 आ रहा है वो, फिर तो वही होगा एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो डेप्रिशिएट होगा, मतलब वही बताना है ना, वही तो पूछ रहा है मेरा का क्लाइंट। हाँ, तो वो डेप्रिशिएबल अमाउंट 90,000 मैंने उसको बता दिया।
तो मेरे को हर साल ईयर 1 2 3 4 5 में डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है, और कंडीशन ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रहा है ग्रेजुअली। यानी ईयर 1 में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन। कंक्लूजन क्या निकाला? ईयर 1 में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन। ईयर 1 में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन इसलिए बिकॉज ईयर 1 में एफिशिएंसी एकदम पीक में है, नया एसेट है। नया एसेट है, एफिशिएंसी पीक में है, तो ईयर 1 में सबसे हाईएस्ट डेप्रिसिएशन। देन उसके बाद ईयर 2 में एफिशिएंसी ग्रेजुअली कम हुआ तो डेप्रिसिएशन भी कम हुआ। देन ईयर 3 में उससे कम, ईयर 4 में उससे भी कम, ईयर 5 में सबसे कम। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर इस तरीके से अपने को सेट करके देना है टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट पूछ रहा है एवरी ईयर, ईयर 1 2 3 4 5, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछ रहा है। यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट इन ईयर 1, डेप्रिसिएशन अमाउंट इन ईयर 2 3 4 5, अलग अलग पूछ रहे हैं। ईयर 1 नया एसेट, एफिशिएंसी पीक में, हाईएस्ट डेप्रिसिएशन मैक्सिमम, एंड ग्रेजुअली ईयर 2 3 4 5 में फॉल होते होते ईयर 5 में एकदम लोएस्ट, सबसे कम। बोलो। ओके, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 90,000। ओके, यूपल ने एक 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 क्लू को क्रैक कर लिया है। ऊपर से इसकी depreciable amount is 90,000. ऊपर says that depreciable amount is 90,000. So ऊपर says कि हमको 90,000 को इन 5 साल में स्प्रेड करना है। ऊपर says that depreciable amount is 90,000, तो अपने को 90,000 को इन 5 साल में स्प्रेड करना है। बट स्प्रेड ऐसे करना है, इस तरीके से करना है कि ईयर 1 में डेप्रिसिएशन का अमाउंट सबसे ज्यादा है, एंड देन ईयर 2 3 4 5 में वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। ऊपर इससे क्या बोला ऊपर ने कि डेप्रिशिएबल अमाउंट इज रुपीज 90,000। यानी ये पूरे 5 साल में इफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 90,000, यानी ये पूरे 5 साल में द टोटल डेप्रिसिएशन इज 90,000। यानी टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 90,000 इन दीज 5 years। बट ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट को 5 साल में ऐसे स्प्रेड करना है कि ईयर 1 में सबसे हाईएस्ट, उसके बाद ईयर 2 3 4 में ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते ईयर 5 में सबसे लोएस्ट। लाइक पहले जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। फिर जब पहले 5 होगा इंटू 5, फिर नेक्स्ट ईयर इंटू 4, देन देन जैसे लाइक थर्ड ईयर में इंटू 3, फिर इंटू 2, फिर इंटू 1। ओके, बोलो, आप बोलो। व्हाट इज दैट? एक्सप्लेन दिस। यू हैव अंडरस्टूड? हु टॉट यू? somebody must have told you ना। जोयता ने एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट दिया है। ठीक है, जयता का हिंट इज ऑलमोस्ट मोर देन 95% टू द पॉइंट। फाइनल गोल तक वो पहुंच गया। ठीक है, अब उसको फिनिशिंग टच देने का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जोयता ने जो बोला एंड सब कुछ को लेकर मैं फिनिशिंग टच देते हुए फाइनल कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। ईयर 1 2 3 4 5, ये 5 साल है।
ये 5 साल में टोटल डेप्रिसिएशन 90,000 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90,000 को ये 5 साल में करेक्ट, देखा, वेरी नाइस, देखो आखिर मिल ही गया ना। तो ये आपने बोला मैं समझ गया, आई हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड करेक्टली, करेक्ट मेरे। तो ये 5 साल में 90,000 को ऐसे स्प्रेड करना है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट इज हाईएस्ट इन ईयर 1, देन 2, देन 3, 4 एंड अल्टीमेटली 5। यानी अगर अपने 90,000 को स्प्रेड करें इन द रेशियो 5:4:3:2:1, है ना, देन आई कैन गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, जो कि क्लाइंट के को सेटिस्फाई कर दे। राइट, यस जयता, मैं हैव आई अंडरस्टूड करेक्टली? यस सर। हम्म, ठीक है। सो अपने को डेप्रिशिएबल अमाउंट को 5:4:3:2:1 के रेशियो में बांटना है इन ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? 5+4+3+2+1 = 15। सो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन इज 90,000 इंटू 5/15। 90,000 को अपने को 5:4:3:2:1 के रेशियो में बांटना है। ईयर 2 का डेप्रिसिएशन इज 90,000 इंटू 4/15। कितना रहा ईयर 1 का? You want to say that the poem continues? बोलो। AP series, common difference is 6,000, correct, common difference is 6,000, because once you know the sequence you can follow it। तो फिर कैलकुलेटर यूज करके टाइम बर्बाद नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज 5, एक्सप्लेन। वो वर्ड अपने इधर में यूज कर ही नहीं सकते, क्लाइंट ने मना कर दिया। व्हाट इज 5, एक्सप्लेन। व्हाट इज 5? You are right now where? In which year? ईयर 1। सो ईयर 1 के स्टार्टिंग में you stand and see how many years are left. How many years are left? ईयर 1 के स्टार्टिंग में you stand and see how many years are left. 5 years are left.
ईयर 2 के स्टार्टिंग में यू स्टैंड एंड सी हाउ मेनी इयर्स आर लेफ्ट. ईयर 3 के स्टार्टिंग में यू स्टैंड हाउ मेनी इयर्स आर लेफ्ट. 3 के स्टार्टिंग में 3 इयर्स आर लेफ्ट. 4 इयर्स के स्टार्टिंग में 2 इयर्स आर लेफ्ट एंड 5th ईयर के स्टार्टिंग में 1 ईयर इज लेफ्ट. वेट. हाँ, तो वही बता रहा हूं मैं. जैसे ईयर 1 के स्टार्टिंग में 5 इयर्स आर लेफ्ट. 2 के स्टार्टिंग में 4 इयर्स आर लेफ्ट. तब समझ रहे हो, हमने इसी रेशियो से डेप्रिशिएट किया है. तो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट. सोचो. सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड. दिस मेथड इज कॉल्ड sum of years of digits method. ठीक है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं पढ़ाया. मैंने सिचुएशन बताया, एक्सप्लेन किया. एंड जब तक आप लोग ने खुद से रेशियो नहीं बताया कि इस रेशियो में ये डेप्रिशिएट होगा, आई कंटिन्यूड गिविंग यू हिंट्स अंटिल यू क्रैक्ट कि किस रेशियो में ये 90,000 को हमें स्प्रेड करना है 5 साल में. खुद से सोचो मैंने क्या बोला होगा. ठीक है. हाँ, करेक्ट. So it is a variation of the reducing balance method. It is a variation of the reducing balance method जैसा हमने डिस्कस किया. In this case, the annual depreciation means depreciation every year is calculated. How? हर साल का depreciation is calculated by multiplying the original cost 1 lakh less its estimated scrap value. Less means minus. Estimated scrap value 10,000. So 1 lakh minus 10,000 is 90,000. What is 90,000? Depreciable amount, which means the total depreciation over the useful life. So इस 90,000 को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग ब्रैकेट्स में ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. Multiplying this original cost minus scrap value by the fraction which is represented by 5 by 15, 4 by 15, 3 by 15, 2 by 15 and 1 by 15. So what is 5? Your question. What is 5? The number of years including the present year remaining life of the asset. यानी ईयर 1 के स्टार्टिंग में असेट का कितना लाइफ बाकी है? 5 साल. ईयर 4 के स्टार्टिंग में असेट का कितना लाइफ बाकी है? ईयर 1 के स्टार्टिंग में 5 इयर्स. ईयर 2 के स्टार्टिंग में 3 के स्टार्टिंग में 4 के स्टार्टिंग में 2 एंड 5th ईयर के स्टार्टिंग में 1 ईयर इज लेफ्ट. Divided by total of all digits. All digits, what are the digits? Total of all digits of the life. Life is 5 years. What are the digits in 5 years? 1, 2, 3, 4, 5. So total of all digits of the life of the asset, 1, 2, 3, 4, 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 of the asset in years. Summation. Total means summation. Digits of the life. Life is 5 years.
5 years में क्या डिजिट्स है? 1 2 3 4 5, सबका टोटल. सो इट इज कमिंग टू 15. So year 1 का depreciation 90,000 into 5 by 15. Year 2 90,000 into 4 by 15. Year 3 90,000 into 3 by 15, and year 4 90,000 into 2 by 15. Year 5 90,000 into 1 by 15. Clear है? ओके, ठीक है. बेसिकली ये जो टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स है ना, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ को निकालने में एक हर्डल आता है. जैसे हमारे एग्जाम्पल में असेट का लाइफ 5 years का था, तो इट वॉज इजी टू एड 1 + 2 + 3 + 4 + 5. What about if the asset life is 20 years? So 20 years also I can add. What about if the life is 50 years? That also you can add, but very much time consuming. So let us understand an easy way out. An easy way out, a shortcut to calculate this denominator, total of all digits of the life of the asset. And what is that shortcut? The formula for sum of n natural numbers, which is equal to n into n plus 1 by 2. बिकॉज जो लाइफ होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा. असेट का जो लाइफ होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो असेट का लाइफ विल बी अ नेचुरल नंबर. मेरे को टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ निकालना है. तो बेस्ट इज टू यूज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n natural numbers, and sum of n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2. For example, हमारे केस में लाइफ था 5, तो n is equal to 5. So 5 into 5 plus 1 by 2. 5 plus 1 is 6. It is coming to 5 into 6 by 2 is 15. आ गया 15. क्लियर है? सो दिस इज सम ऑफ years ऑफ डिजिट्स मेथड. मेथड के का नाम का मीनिंग समझ में है, सम ऑफ years ऑफ डिजिट्स मेथड. ठीक है, sum of years of digits method. So it is basically a variation of the reducing balance method. Ready to solve illustration 3? Ready? ठीक है. हड़बड़ाना नहीं है. Accounting entries are same as we have already discussed. Illustration 3 में requirement क्या है? Show machinery account and depreciation account in the books for 2022. For 2022, only for 2022, not for any other year. तो ये दो अकाउंट हमने को बनाना है ओनली फॉर 2022. बट अगर हम एग्जाम में इससे ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स का अकाउंट बनाकर आ गए, इवन इफ मेरा 2022 का अकाउंट करेक्ट है, आपको रॉन्ग मार्क कर दिया जाएगा. सो 2022 मींस 2022 का ही बनाकर आना है, इससे पिछले सालों का नहीं बनाना है. ठीक है. बाय यूजिंग सम ऑफ years ऑफ डिजिट्स मेथड. The question क्या? Messrs Akash and company purchased a machine for rupees 10 lakh. So ये मशीन का क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट. Estimated useful life and scrap value were 10 years and rupees 1,20,000 respectively. Yani useful life is 10 years and scrap value is 1,20,000.
20,000. So depreciable amount is how much? Depreciable amount is original cost minus scrap value, 10 lakh minus 1,20,000, which is coming to rupees 8,80,000. ये मेरा depreciable amount है. Depreciable amount means this is the amount of total depreciation that should be charged throughout the useful life of 10 years. The machine was put to use on 1/1/2017. तो मशीन यूज होना कब से शुरू हुआ है? 1/1/2017. और हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि 2022 का मशीनरी अकाउंट बनाना है. क्वेश्चन को रीड करके समझ में आ रहा है कि ईयर कैलेंडर ईयर इज फॉलोड एज द अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Jan and ending on 31st December. तो अपने को 2022 का मशीनरी अकाउंट बनाना है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. तो 2022 का स्टार्टिंग डेट, ओपनिंग डेट इज 1/1/2022. और ये मशीन यूज होना कब से स्टार्ट हुआ? 1/1/2017. यानी ये वाले मशीन को यूज करते हुए कितना साल हो चुका है? बिफोर 1/1/2022, how many years, for how many years this machine has been used? 2017, 18, 19, 20 and 21. 5 years के लिए यूज हो चुका है. यानी इस मशीन पर 5 years में, इन 5 years में डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है. 5 साल यूज होते हुए हो गया मशीन को, तो ये 5 साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है. तो सबसे पहला amount you require is the opening balance of the machine on 1/1/2022. बिकॉज अगर अपने 2022 का मशीन अकाउंट बना रहे हैं और ये मशीन पुराना मशीन है जो 5 साल से यूज हो रहा है, सो फर्स्ट वी रिक्वायर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1/1/2022. एंड 1/1/2022 से पहले ये 5 साल डेप्रिशिएट हो गया है. ठीक है. तो ये 5 years का डेप्रिसिएशन कैसे निकालो? वो तो मेरे को भी पता है. ठीक है. तो मेरे को अमाउंट बताओ. तो वो करके बताओ. हेल्प मी कम हियर. सबसे पहले 2017. 2017. अच्छा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट. लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years. तो 10 years में व्हाट आर द डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका टोटल चाहिए. तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला यूज करके टोटल कर लो. 55. सो बाई 55 होगा. अब बताओ 2017 का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 8,80,000 depreciable amount. Very nice. Keep going. Keep going. Into 2017 के स्टार्टिंग में. वेरी गुड. वेरी नाइस. ठीक है. कैलकुलेट नहीं करना है. होल्ड. वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क. कैलकुलेटर एक्चुअली कंप्यूटर भी करके दे देगा कैलकुलेशन. कंप्यूटर इज नॉट, कैलकुलेशन इज नॉट द मेन टास्क. मेन टास्क इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स.
ठीक है, वेर वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. AI is replacing everything ना. So we need to develop our skills in such a way that AI cannot be replaced. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल छोटा सा एग्जांपल है. जैसे टू एडवर्टाइज फॉर माय क्लासेस, फर्स्ट आई यूज्ड टू टेक अ हेल्प ऑफ अ person who used to make posters for me. Then came ChatGPT, AI. So in ChatGPT, I simply type whatever I require in the poster and they create a fabulous poster where I don't need to even edit also. So AI is replaced. तो अपने को ऐसा स्किल डेवलप करना है वेर वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई. ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलवेज शुड बी अबव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो ऐसा नहीं है कि we have given birth to a snake who bites the owner only. हाँ. चलो, प्रोसीड. 8 लाख 80 इंटू 10/55. ये 2020, ये 2017 का डेप्रिसिएशन है विच इज माई ईयर 1. एसेट का यूजफुल लाइफ इज 10 years. ठीक है, 10 years. देन 2018 इज द सेकेंड ईयर. 2018 का डेप्रिसिएशन इज 8 लाख 80 इंटू 9/55. 2019 is the Joyata, you are able to follow? Yes, sir. 2000. Oh, why am I missing so much of typing mistake, writing mistake? Follow 2020. 8 lakh into 80 into 755. Because 2020 is what? The fourth year, and fourth year के starting में फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में तो 7 years बचा होगा ना. बिकॉज फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में 3 साल बीत चुके हैं. तो कितना साल बचा? 7 years बचा. अंडरस्टूड. फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 10 years. सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 9 years. बिकॉज सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से पहले 1 साल हो चुके हैं. तो बचा कितना? 9 years. ईयर थ्री के स्टार्टिंग में, ईयर थ्री के स्टार्टिंग से पहले 2 साल हो चुके हैं. तो बचा कितना? 8 years. ईयर फोर के स्टार्टिंग में, ईयर फोर के स्टार्टिंग से पहले 3 साल हो चुका है. तो बचा कितना? 7 years. क्लियर? हम लोग को क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/1/2022. तो अपने को टिल 31st December 2021 का डेप्रिसिएशन निकालना. तो हमने 31st December 2021 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया. सुनो, वेट. ठीक है, तो इस तरीके से 2017, 18, 19, 20, 21, इन 5 साल का हमने डेप्रिसिएशन निकाला. ठीक है, ये अमाउंट आया. ऐड करेंगे. वेट. ऐड करेंगे. ठीक है, ऐड करना है. यानी ये करना है, ऐड करना है. अब देखो मजा किसमें है? ऐड करने में मजा है. तो ऐड करने में मजा तब आएगा जब हम, व्हाट कैन यू टेक?
नहीं, you have taken what, 8 lakh 80 common. What have you done? 8 lakh 80 common. 8 लाख 80 को आपने कॉमन ले लिया, तो मिला ये आपको। समझ में आया? तो एग्जाम में दिस इज नॉट अलाउड। वाई? ये अलाउड वैसा नहीं है कि मतलब एग्जामिनर को आप गलत इंप्रेशन दे दोगे कि आप बहुत ही बाबादम जमाने का स्टाइल फॉलो कर। समझ में आ रहा है ना? मतलब एज इन की यू विल गिव एन इंप्रेशन दैट यू आर नॉट स्मार्ट, क्वालिटी नहीं है आप में। तो एक बार अगर वो इंप्रेशन पड़ जाता है तो बाकी आंसर्स पर उसका वही इंप्रेशन रहता है। मोटा माथा আছে, বাংলাতে মোটা মাথা, মাথা মোটা আছে। ठीक है। ओके, तो इसको करो अपने, ये फॉलो करेंगे। सो 8 लाख 80। अब कैलकुलेटर यूज करो। 10 + 9 + 8 + 7 + 6। दिस इज अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। 6,40,000 is the amount of total depreciation. Yes. So 6,40,000 is the amount of total depreciation till 31st December 2021. Sound so? Now tell me. Now tell me how will you, yes, calculate the WDV on 1/1/2022. 6,40,000 is the total depreciation, and I required WDV on 1/1/2022. I knew you would say this. ठीक है, बोलो। WDV कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इज 6,40,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। इशू है ये किससे माइनस करना है। अब ऊपर बानिक एज ऑलवेज उसके दिमाग में दो एंटीना चल रहे हैं। हे ना ना नो डोंट। दो एंटीना ऊपर बानिक के, दो एंटीना क्या है? एक एंटीना बोल रहा है 8 लाख 80 और एक एंटीना बोल रहा है 10 लाख। तो ऊपर बानिक का कौन सा एंटीना सही बोल रहा है? 10 लाख सही बोल रहा है ना? बट ऊपर बानिक ने क्या बोला? 8 लाख 80 जानबूझ के बोला, जस्ट टू इरिटेट मी। ठीक है, समझ में आया? सो 10 लाख। इसलिए बोलते हैं ना, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आई विल गेट इनटू द नर्व्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। फिर आपको कोई डाउट्स पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आई विल अंडरस्टैंड योर माइंड मैपिंग, कि आपके दिमाग का तार कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आपको यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट, आई विल अंडरस्टैंड। क्लियर? इसीलिए जो फाउंडेशन करते हैं वो साथ में इंटर भी करते हैं, बिकॉज सारा सेटिंग हुआ हुआ है ना? इसीलिए। सो 10 लाख माइनस 6,40,000, इट इज कमिंग टू हाउ मच? 3,60,000 इज द ओपनिंग WDV। यानी मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस B/D ऑन 1/1/2022 3,60,000। अब 2022 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इधर में आ जाओ। 2022 का डेप्रिसिएशन विल बी 8,80,000 इंटू 5/55, बिकॉज 2022 इज द 6th ईयर।
एंड सिक्स ईयर के स्टार्टिंग में आ जाओ, सिक्स ईयर के स्टार्टिंग से पहले 5 साल बीत गए तो 5 साल बचा है, तो 8,80,000 इंटू 5/55, इट इज कमिंग टू हाउ मच? 80,000. So 80,000 is the amount of depreciation. Depreciation के लिए entry is depreciation to machine. Machine की बाई साइड में बाई depreciation. Clear है? Then closing balance by balance E by D 2,80,000. Depreciation account is very simple. To machinery account 80,000 and by profit and loss account 80,000. क्लोज कर देते हैं इसको बाय ट्रांसफर टू. सो ये एंट्री को अपने क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री. ये सब चीज को याद रखना क्योंकि अपने को फाइनल की नो. राइट ऑफ एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है. हाँ, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000. क्लियर? अपने को स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके सॉल्व करना है. देखो, दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट रेकमेंड्स, नॉट वो दैट टेबल एंड ऑल. समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप, दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू शो इन द एग्जाम एज वेल. ओके, क्लियर है? अभी और 3 मेथड्स बचे, बट वो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. जैसे नेक्स्ट मेथड इज मशीन आर मेथड. इसमें क्या होता है? जो एसेट का लाइफ होता है, इट इज इन नंबर ऑफ मशीन आवर्स. यानी इतने घंटा ये चलेगा, उसके बाद बुम, एसेट खत्म. राइट, वैनिश्ड. दैट वे समझ के रखो. सो एसेट का लाइफ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मशीन आवर्स. इट कैन बी वर्क, नॉट इन ईयर्स. नंबर ऑफ मशीन आवर्स. तो सपोज अगर नंबर ऑफ मशीन आवर्स इज से 10,000. आई गिव एन एग्जांपल. ओरिजिनल कॉस्ट इज 1 लाख. स्क्रैप वैल्यू इज 10,000. Okay. So depreciable amount is 90,000. यानी 90,000 is the amount of total depreciation. Depreciable amount मतलब ये अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है पूरे लाइफ में, क्योंकि इतने अमाउंट का एसेट बिजनेस ने कंज्यूम यूज किया है, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन है. और इसका यूजफुल लाइफ इज 1,000 आवर्स. 1,000 आवर्स ही चलेगा, 1,000 मशीन आवर्स. सपोज ईयर 1 में ये मशीन यूज हुआ 250 आवर्स के लिए. अब ये 1,000 आवर्स आप एक साल में यूज कर लो, या 2 इयर्स में यूज कर लो, या 3 इयर्स में यूज कर लो, ये बिजनेस के यूज पर डिपेंड है. बट मशीन चलेगा तो 1,000 आवर्स चले. आप इसको 6 मंथ्स में भी यूज कर सकते, बट ये चलेगा तो 1,000 आवर्स इन टोटल चलेगा. तो ईयर 1 में मशीन चला 250 आवर्स. तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन बताओ. 90,000 इंटू 250/1000. समझ में आया ना? करेक्ट. 90,000 इंटू 250/1000. ओके, बिकॉज ये 90,000 इज द टोटल डेप्रिसिएशन which must be charged for 1,000 hours. So what is the depreciation for 250 hours? How much use have you made of the asset in 250 hours?
90,000 by 1,000 into 250. यूनिटरी मेथड, एकदम सिंपल। मैंने बोला 90,000 बाई 1,000 इंटू 250, एक ही जिनिस तो। हम्म 90,000 बाई 1,000 इंटू 250, बट ठीक है। सो 90,000 को टोटल, 90,000 इज टोटल डेप्रिसिएशन इन 1,000 आवर्स। तो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन इज, depreciation is 250 as 90,000 by 1,000 into 250. आप ऐसे समझना, depreciation rate per hour is 90,000 by 1,000. How much? 90. बस, whichever way you want to understand. Clear है? So this is machine hour method. A machine was purchased for how much? 30 lakhs. ये मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है। Estimated total working of 24,000 hours. Total number of machine hours 24,000. Scrap value is expected to be rupees 2,50,000. So depreciable amount is rupees 28 lakhs. An anticipated pattern of use of effective hours is as follows. Year 1 to 3 में 3,000 hours per year, यानी year 1 में 3,000 घंटा, year 2 में 3,000 घंटा, year 3 में 3,000 घंटा। तो कितना हो गया? 9,000 घंटा ये 3 साल में। Then year 4 to 6, 2,600 hours per year, यानी ईयर 4 में 2,600 आवर्स, करेक्ट। ईयर 5 में 2,600 आवर्स एंड ईयर 6 में 2,600 आवर्स। तो 2,600 into 3 is 7,800 hours. Clear? Then year 7, 8, 9, 10, हर साल, every year 1,800 hours. So 1,800 into 4 is how much? 7,200 hours. टोटल चेक कर लो कितना आ रहा है, 24,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बापरे, इसमें मत पूछना कि नहीं समझ में आया। क्लियर है ना? मतलब ये 24,000 घंटे का स्प्रेड को समझे। 24,000 घंटे इसका टोटल मशीन आज है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, एवरी ईयर 3,000 आवर्स। तो इसमें 9,000 आवर्स यूज हो गया। देन ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6 में एवरी ईयर 2,600 आवर्स पर ईयर। तो इसमें 2,600 into 3, 7,800 आवर्स यूज हो गया। ईयर 7, 8, 9 एंड 10, 4 साल में 1,800 आवर्स एवरी ईयर। तो 1,800 into 4 is 7,200। चारों को तीनों को टोटल करो, 24,000 आवर्स। अब नाउ ईयर वन का डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 28 लाख इंटू ईयर 1 में कितना आवर्स यूज हुए? 9,000 और 3,000? 3,000 आवर्स। 9,000 तो टोटल है इन ईयर 1 2 3। क्यों करना है? ईयर वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ईयर 1 मशीन इज यूज्ड फॉर 3,000 आवर्स, सो 3,000 आवर्स का डेप्रिसिएशन 28 लाख इंटू 3,000 बाय 24,000। अमाउंट आएगा एक तो, ये जो अमाउंट आएगा दिस विल बी फॉर ईयर 1 and also year 2 and also year 3. Same amount in year 1 and year 2 and year 3. Okay? Sir, I had a question. Wait. Okay, tell me your question. No, no, sir, it's okay. You can finish his doubt first. Tell me, please. I request with folded hands. Please tell me your question. Sir, it's not a very major question. I just wanted to ask you, sir, in the paper, will we get marks for like do we have to elaborate करके we have to show all the calculations properly, like जैसे कि 3,000 into 3
वैसे करके, or can we just directly write it? Like marks will be deducted on the basis of it or not? I'll answer this. Very valid question. Hats off. ठीक है. Sir, Okay. चलो, very very valid question. Thank you so much, Bani. We are all grateful for asking such questions. चलो, ठीक है, क्लियर है. सो इसी तरीके से ईयर 4 का डेप्रिसिएशन. ईयर 4 में मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी आवर्स? 7,800 hours? No. Then 2,600 hours. So 28 lakh into 2,600 by 24,000. And the same amount of depreciation will be for year 5 and 6. Clear है? तो माने योर क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है. okay, sir. इंस्टीट्यूट Thank you. इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज विच एवर रिलीजन यू फॉलो. अभी तो इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो इट इज, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इज गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ जो भी है, ये वो है, इसी को फॉलो करना है. चलो, ठीक है, डन. नेक्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. अंडरस्टैंड बाय सेल्फ ओनली कि इसमें जो है asset का life will be in terms of the number of units it can produced throughout. So depreciation under this method is depreciable amount into number of units produced divided by estimated total production. The original cost is 20 lakh, life is 10 years. Life is 10 years. क्या ये relevant है? Answer is no. Thank you. Residual value is 2 lakh. इसको माइनस करके विल गेट depreciable amount 18 lakh. Machine is expected to use 1.5 lakhs unit during its lifetime. So total life is 1,50,000 units. Expected distribution pattern of production is as follows. Same type of data, same type तरीके से solve करना है, presentation करना है. Clear है? The last method, कितना methods हो चुके हैं इससे पहले? Very nice. 5. Straight line method, WDV, sum of years of digits method, खतरनाक, and then machine hour method and productions method. So up the last depletion method. Depletion method start करने से पहले एक चीज बोल दूं कि AS10 recommends SLM और WDV. बाकी जो मेथड्स है वो अगर जैसे स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक केसेस में ही यूज हो सकता है, इन जनरल यूज नहीं हो सकता. जैसे अगर मशीन का लाइफ इज ए नंबर ऑफ आवर्स तो मशीन आवर मेथड को यूज कर सकते हैं. बट रिकमेंडेशन क्या है? आइदर SLM और WD. इन जनरल यही दो मेथड्स यूज हो. डिप्लीशन मेथड कौन सा? व्हाट आर डिप्लीटिंग एसेट्स? माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल माइंस, वेस्टिंग एसेट्स, है ना? जैसे कोल माइन से आप कोयला निकालते जाओगे तो वो डिप्लीट होते जाएगा. तो कोल माइन इज एन एसेट, तो उसके लिए जो मेथड अपने यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन मेथड. कोल माइन इज नॉट एन एसेट. कोल माइन इज एन एसेट. व्हाई नॉट? यू हैव नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल इन द कोल माइन. अरे क्या चीज? हाँ, तो वो तो हर एसेट का वही कहानी है. आप कोयला निकालते जाओगे तो उसका कोयला एक्सट्रैक्ट होते होते वो डिप्लीट हो रहा है. तो सो मिसेस सूर्या एंड कंपनी टुक लीज, सेम तरीके से जैसे हमने
मशीन आर मेथड एंड प्रोडक्शन इस मेथड को समझाता, there will be no scrap value in depletion method. How it is possible? You cannot sell the coal mine as a scrap, right? Because it is used for wasting natural resources जो कि gradually खत्म होते जाता है. वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि जैसे आपने कहा क्या, वो खत्म होते जाएगा ना धीरे धीरे करके, बट वो एसेट क्यों, बिकॉज आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हैं. बट हर एक एसेट का भी तो अपना एक यूजफुल लाइफ होता है. ठीक है, तो ये वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या, जिसका यूज जो ग्रेजुअली, यस. So it took a lease of a quarry on 1/1/2019 for rupees 100 lakhs, means 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons, means 2 lakhs. तो मैं lakhs में काउंट कर रहा हूँ to make things simple. तो 100 lakhs का मेरा एसेट है और ये 100 lakhs में मैं 2 lakh tons एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the table. तो 2019 में 2000 टन्स एक्सट्रैक्ट किया है, तो बोलो 100 lakhs, बोलो 1 crore इंटू 2000 बाई. पानी क्लियर है ये वाला? पानी और देर जोयता क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So पानी suddenly where you went? Sir, I thought my mic was unmuted. Then I realized it's muted. Oh, ठीक है. So 2020 100 lakhs into 10,000 by 2 lakh. जैसे अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे, जैसे अपने एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है. Show the query lease account, which is an asset account, depreciation account for each year from 2019 to 2021. So 2019, 20 और 21 ये 3 साल का अपने को अकाउंट बनाकर देना है. ठीक है. So we have completed discussing all the methods to calculate depreciation. So 6 methods है, 6 illustrations हमने solve किया. अब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आवर टास्क इज टू डू written practice of all the questions we have discussed. भले ही हो सकता है क्वेश्चंस मे बी सिंपल, तो क्या रिटर्न प्रैक्टिस करें, बट स्टिल यू डू, देयर इज अ पर्पस. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. यस श्वेता, you are able to follow the class like अकाउंट्स जो अपने क्लास 11 12 में सीखा था उससे थोड़ा सा बेटर समझ में आ रहा हाँ हाँ. है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय.